So next part of this next topic of this chapter is what are various deficiency symptoms. Deficiency symptoms क्या होते हैं? Deficiency जैसे कि नाम से पता चल रहा है, deficiency is lacking of something. और what is lacking? Some minerals are lacking that are necessary for growth and development. अभी हमने अपने last topic में देखा बहुत सारे minerals, they were all involved in the process of the proper growth and development. Some minerals were performing some one function and some another were performing another, and some moreover what we had seen, maximum minerals jitne bhi the, they were involved in various biochemical reactions that were regulating all the physiochemical processes. jitne bhi physiochemical processes hain, biochemical processes hain plants ke, unko regulate karne ke liye all these minerals are needed. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए दे आर नीडेड इन प्रॉपर अमाउंट, इवन वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्रोन्यूट्रिएंट एज वेल एज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट. सबका अपना अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है और एक डेफिनेट अमाउंट है. एंड व्हाट विल हैपन इफ ए डेफिनेट अमाउंट इज लेस इन नंबर, लेस इन अमाउंट. अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट इफ वी आर नीडिंग देम फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक डेफिनेट अमाउंट जो भी साइंटिस्ट देखते हैं, अगर इफ इट इज लेस इन अमाउंट तो वो क्या होगा? द प्लांट्स विल शो सम ऑफ द लैकिंग्स इन द फॉर्म ऑफ सिम्टम्स. जैसे कि इफ वी आर नॉट गिवन प्रॉपर फूड, तो what will happen to the children if they are not given the balanced diet? Definitely they will be lacking in something. तो कुछ ना कुछ उनमें lacking होगी. जैसे कि we have come across so many deficiency diseases that are occurring in human beings, specifically in children. विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, बी से, सी से बहुत सारी डिजीजेस हम जान चुके हैं. तो इन द सेम मैनर मिनरल्स की डेफिशिएंसी से भी व्हाट इज हैपनिंग, देयर आर सम डेफिशिएंसी सिम्टम्स आर डेवलप्ड एंड दे आर लीडिंग टू सम specific kind of diseases. ठीक है, तो in this topic what we are studying, what are these deficiency symptoms? Deficiency symptoms are those symptoms if these are developed due to the deficiency of some of the minerals, if they are not given in proper amount. तो what is a proper concentration of these mineral? हमें ये जानना जरूरी है कि क्या कंसंट्रेशन चाहिए मिनरल की. तो उसके लिए we define it with the help by means of some specific word, what we call it critical concentration. क्या होता है critical concentration? तो first of all we should know what is a critical concentration. Critical means एक optimum amount of the mineral is needed. Optimum amount. What is meant by optimum amount? That means we can say if this mineral, a particular mineral is required in some very small amount or a definite amount, and if that amount is not present in the plant, the plant will be showing various symptoms. और वो कौन से symptoms होंगे? There may be morphological changes, structural changes, they may be lacking in some biochemical processes, they will not occur in a proper manner. तो जो भी plants के अंदर irregularities होंगी या उनकी जो plants के देखने में मिलेंगी, जैसे कि हमने अभी क्लोरोसिस और नेक्रोसिस की बात की थी, अभी just we had given the information only और उनको हमने डिटेल में नहीं देखा. तो अब हम देखेंगे कि वो क्या सिम्टम्स हैं जिसके बेसिस पे वी कैन से दैट दीज मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट, कि इम्पॉर्टेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज ए क्रिटिकल कंसंट्रेशन. इज ऑप्टिमम अमाउंट होना जरूरी है ताकि प्लांट्स के अंदर डेफिशिएंसी सिम्टम्स ना हो. ठीक है, इफ ए क्रिटिकल कंसंट्रेशन में इफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट इज लेस, एलिमेंट अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से लेस अमाउंट में होगा तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? लेस इन अमाउंट, then it will be leading to the deficiency diseases. Deficiency diseases. ठीक है, deficiency diseases may be in the form of chlorosis, may be in the form of necrosis, inhibition of cell division, delay in flowering. ठीक है, और
भी बहुत सारे फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, नो फॉर्मेशन ऑफ सीड सेट, ठीक है, नो इलोंगेशन इन प्लांट। तो ये सब चीज़ें जो भी शो करते हैं, ऑल दीज आर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। ये सब क्या है? मॉर्फोलॉजिकल, देखने में जो नज़र आ रही हैं बाहर से, जिनको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेस। स्ट्रक्चरल चेंज ड्यू टू द लैकिंग ऑफ दिस, कमी से, किसकी कमी से? मिनरल एलिमेंट की। वो एलिमेंट कितना कम होगा? जरा सा भी ऑप्टिमम अमाउंट से कम हो गया तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन तो एक राइट अमाउंट है, ठीक है ना, तो राइट अमाउंट इज क्रिटिकल कंसंट्रेशन, ठीक है। उससे ज़्यादा भी हो जाएगा ना तो व्हाट कैन हैपन इफ इट इज क्रिटिकल कंसंट्रेशन, इफ मिनरल इज मोर इन अमाउंट, मिनरल इज मोर, जरा सा भी ज़्यादा हो जाएगा ना इन अमाउंट, देन व्हाट कैन हैपन, देन इट विल लीड टू दी टॉक्सिसिटी। ज़्यादा होने से भी क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर मिनरल का टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो व्हाट वी कैन से कि देयर इज ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ दिस मिनरल और एक स्पेसिफिक मिनरल इज नीडेड, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट व्हाट वी हैव टू कंसीडर, डेफिशिएंसी डिजीजेस दे वेरी फ्रॉम मिनरल टू मिनरल। और क्रिटिकल कंसंट्रेशन जो है, जो भी अमाउंट जरूरी है एलिमेंट का, ऐसा नहीं है कि सबको एक ही अमाउंट की जरूरत है। किसी मिनरल को कुछ अमाउंट चाहिए, किस दूसरे मिनरल का कुछ अमाउंट चाहिए। आई मीन टू से कि ऑल मिनरल्स दे आर हैविंग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड ए स्पेसिफिक अमाउंट इज देयर। तो इसका मतलब क्या है? द क्रिटिकल कंसंट्रेशन varies from एलिमेंट टू एलिमेंट, मिनरल टू मिनरल, ठीक है, एलिमेंट टू एलिमेंट। ऐसा नहीं है सबकी अपनी एक ही फिक्स कर लो क्रिटिकल कंसंट्रेशन, एक एलिमेंट की यही है दूसरे की भी यही होगी, नहीं, इट वेरीज फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, ठीक है। एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स की कुछ होगी, दूसरे एलिमेंट की कुछ होगी, तो ये भी पॉइंट हमने रखना है। और क्रिटिकल कंसंट्रेशन किस पे भी डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट ऑल्सो डिपेंड्स, और वी कैन से डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑल्सो डिपेंड्स। अगर मान लो किसी भी प्लांट में कोई डेफिशिएंसी सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी मोबिलिटी ऑफ आयन, मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट, मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट। मोबिलिटी मीन्स वेदर द एलिमेंट इज एक्टिव और पैसिव। कोई भी एलिमेंट एक्टिव है या पैसिव है, वो कैसे है? दैट वी सी नाउ। तो अगर हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं प्लांट बना के, ठीक है, तो उसके बेसिस पे व्हाट वी से, जैसे सपोज दिस इज ए प्लांट, एक मान लो हमने प्लांट लिया और हम वी वांट टू सेट सी द डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन व्हाट मैनर दे आर बीइंग डेवलप्ड। साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, सपोज द ओल्डर लीव्स आर प्रेजेंट एट द बेस, बेस पे कुछ ओल्डर लीव्स प्रेजेंट है, ठीक है, दिस इज एन ओल्डर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, एंड these are older leaves, and upper part if we see is having young leaves or young bud, young flowers or young bud, what we can say upper part is having developing tissue, young tissue, ठीक है, flowers भी बना सकते हैं इसमें, ठीक है। bud condition में what we can say, suppose मान लो if an element is actively mobile, actively mobile element कौन से हैं? जैसे this is an old part। अब इस ओल्ड पार्ट में ना सब एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन भी है, पोटेशियम भी है, मैग्नीशियम भी है, ठीक है। ऑल दीज, ये तीनों जो है ना एक्टिवली मोबाइल हैं, फटाफट मूव करते हैं। तो एक्टिवली मोबाइल एलिमेंट कौन कौन से हैं? वी कैन से बट टॉकिंग अबाउट दी मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट, तो उसमें व्हाट वी सी, सपोज दिस इज एन ओल्डर लीफ एंड इट इज हैविंग नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ये तो है एक्टिवली मोबाइल। एक्टिवली मोबाइल मीन्स दे आर मूविंग फास्टली टू द यंगर पार्ट, एक्टिवली मोबाइल, ठीक है। तो whenever they are moving towards this younger part, the deficiency symptoms will develop in the older part. तो they are moving to the, यहाँ से लेकर कहाँ जा रहे हैं? नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम, इनको तो कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी, नो डेफिशिएंसी इन young part, in young leaves। तो young leaves में कोई भी इनकी कारण, इनकी क्योंकि ये एक्टिवली मोबाइल हैं, जैसे कि whenever tissues or leaves they become old,
ओल्ड हो जाती हैं तो दे ऑलवेज डाई, दे ऑलवेज फॉल ऑफ. देयर इज ए सेनिसेंस. दिस फॉलिंग ऑफ लीफ इज ऑल्सो कॉल्ड द सेनिसेंस ऑफ लीफ. whenever they are senescence, then what happens, तो उनमें से ये जो नाइट्रोजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम है ना, एक्टिवली दे मूव टूवर्ड्स द यंग पार्ट. एंड लाइकली चांसेस आर देयर इफ दीज लीव्स आर रिटेन्ड ऑन द प्लांट. ओल्ड प्लांट पे ये ओल्ड लीव्स रहती हैं तो इन पे डेफिशिएंसी सिम्टम्स डेवलप. डेफिशिएंसी सिम्टम्स किसके कारण डेवलप हो जाएंगे? मान लो इफ दे आर जस्ट बिफोर सेनिसेंस, द डेफिशिएंसी सिम्टम्स विल डेवलप ऑफ किसके? नाइट्रोजन के, पोटाशियम के और मैग्नीशियम की कमी से. कहाँ पे हो जाएंगे? इन ओल्ड पार्ट्स में. तो ओल्ड पार्ट्स में तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स डेवलप होंगे ओल्ड सेनिसेंट पार्ट में एंड अल्टीमेटली दे विल फॉल ऑफ. क्योंकि रैपिडली मोबाइल किस पे डिपेंड कर रहे हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स? मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट पे. और अगर हम बात करते हैं जो ई मोबाइल एलिमेंट जैसे कि कैल्शियम एंड सल्फर, कैल्शियम एंड सल्फर आर ए पार्ट ऑफ प्लांट सेल वॉल का इंपॉर्टेंट हिस्सा है. ई मोबाइल है, दे आर नॉट एबल टू मूव टू द यंग पार्ट्स. ई मोबाइल एलिमेंट है, ठीक है. एंड वेन एवर देयर इज, जब भी इनमें सेनिसेंस होगा या जब भी होगा, वट एवर विल बी देयर, चांसेस आर देयर टू of the deficiency symptoms to occur into the young part. क्यों? they are not immobile. तो deficiency symptoms किस में होंगे develop? due to the deficiency of, किस में हो जाएगी? कैल्शियम एंड सल्फर में के कारण. किस में? यंग पार्ट्स में डेफिशिएंसी सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे. तो कैल्शियम एंड सल्फर तो इमोबाइल है, दे आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, जैसे कि लीफ सेल वॉल का हिस्सा है और वो रिलीज नहीं होते इजीली. एंड दैट इज़ वाई जब भी कोई भी एलिमेंट को जो मोबाइल ना हो तो उस केस में व्हाट हैपन्स, डेफिशिएंसी सिम्टम्स दे विल अपीयर इन यंग पार्ट. यंग पार्ट में अपीयर होंगे क्योंकि दे आर नॉट एबल टू मूव. कैल्शियम एंड सल्फर आर नॉट एबल टू मूव. तो इस तरह से किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द मोबिलिटी ऑफ आयन. तो I was also talking about the critical concentration or optimum amount. One thing more we have to keep in mind regarding the macronutrient. मैक्रोन्यूट्रिएंट की अपनी क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन है. जैसे कि एक राइट अमाउंट हो जाए, राइट अमाउंट हो जाएगा तो ग्रोथ होगी, ठीक है ना. राइट, इफ देयर इज राइट अमाउंट. और कई बार क्या होता है, राइट अमाउंट से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाएगा ना, मोर, राइट अमाउंट से इफ मोर, तो व्हाट विल हैपन? नो टॉक्सिसिटी. तो इनमें टॉक्सिसिटी के चांसेस कम होते हैं, ठीक है. कम हो जाएगा तो अगेन इफ इट इज लेस इन अमाउंट तो डेफिशिएंसी डिजीजेस के चांसेस हो सकते हैं, कोई भी सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं. मैक्रोन्यूट्रिएंट की मैं अलग से बात कर रही हूँ. इफ देयर आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इफ दे आर गिवन इन प्रॉपर अमाउंट देन ओके, इफ दे आर इन लेस अमाउंट देन डिजीजेस. लेकिन थोड़ा सा भी ज़्यादा अमाउंट दे देंगे तो व्हाट विल हैपन? अगेन नो डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी. कोई भी टॉक्सिसिटी के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं होंगे. जबकि अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें ना, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की अगर डेफिशिएंसी, माइक्रोन्यूट्रिएंट को अगर हम प्रॉपर अमाउंट में दें तो इट इज़ ओके, ठीक है. लेकिन अगर इसको थोड़ा सा भी ज़्यादा अमाउंट में दे दें माइक्रोन्यूट्रिएंट को, देन इट लीड्स टू टॉक्सिसिटी. माइक्रोन्यूट्रिएंट का एक डेफिनेट अमाउंट, अगर उसकी कमी डेफिनेट अमाउंट से कम है, सिम्टम्स तो डेफिशिएंसी आएंगे ही आएंगे. लेकिन जब ज़्यादा हो जाएगा वो अमाउंट माइक्रोन्यूट्रिएंट का, तब व्हाट कैन हैपन? टॉक्सिसिटी कैन हैपन. माइक्रो में तो हो सकती है लेकिन मैक्रो में थोड़ा सा ज़्यादा कर दो तो नहीं हो सकती. तो दिस इज रिगार्डिंग वेरियस डेफिशिएंसी सिम्टम्स. अब हम देखते हैं व्हाट आर वेरियस सिम्टम्स दैट ऑकर. क्लोरोसिस क्या होता है और कौन से व्हाट एवर आर प्रेजेंट इन एनसीईआरटी दैट वी डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल. फर्स्ट आई रब इट एंड देन टेल यू. तो फर्स्ट डेफिशिएंसी सिम्टम वी कम विद द येलोइंग ऑफ लीव्स एंड इट इज ड्यू टू द लॉस ऑफ क्लोरोफिल एंड ऑकर ड्यू टू सम डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स. कुछ मिनरल्स के कारण होती है. इंटरवेनल एरियाज में या मार्जिन में, और कई बार पूरा का पूरा एंटायर लीफ ही कलरलेस हो जाता है. इंटरवेनल एरियाज और मार्जिन, ठीक है, ड्यू टू लॉस ऑफ क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट, वी कैन से क्लोरोप्लास्ट ही खत्म हो जाता है. एंड ऑल दीज आर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ what we can say some minerals. वो mineral कौन से हैं वो तो हम देखते हैं. One more thing we have to keep in mind, it should not be confused with the etiolation. Etiolation क्या होता है? Yellowing of leaf. When
they are kept in dark. Etiolation means yellowing of leaves, and it is purely a physiological phenomenon. Yellowing of लीव, जैसे हम कोई भी प्लांट को डार्क कंडीशन में रखते हैं ना तो वो पीली पड़ जाती हैं, दे बिकम येलो, ठीक है. तो डार्क कंडीशन में येलोनेस इज कॉल्ड द इटियोलेशन, एंड इन इट व्हाट हैपेंस, स्टेम इलोंगेट्स एंड होल ऑफ द लीफ और द स्टेम दे बिकम पेल इन कलर, ठीक है. एंड इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद क्लोरोसिस. क्लोरोसिस क्या होता है? ड्यू टू द लैक ऑफ मिनरल्स, और इटियोलेशन होता है ड्यू टू द लैकिंग ऑफ सनलाइट, सनलाइट की एब्सेंस के कारण. जब भी सनलाइट मिलेगी ना, देन दे विल अगेन रिगेन इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर, अपना ग्रीन कलर फिर से इनमें रिगेन हो जाता है. तो उसमें क्लोरोफिल लॉस्ट होता है ड्यू टू द इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तभी तो मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये आया हुआ है 2014 में ये क्वेश्चन इटियोलेशन का आया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था. तो दैट इज व्हाई देयर वाज अ नीड टू टेल यू. मुझे 2014 के तो मैं आपको पहले भी बोला क्वेश्चन टिप पे हैं, क्योंकि मेरी डॉटर ने भी दिया था एग्जाम, तो आई कीप ऑन रिमेम्बरिंग. और उस वक्त बहुत टफ पेपर था, थोड़ा सा बाहर से भी आया था. तो I was talking about chlorosis. तो chlorosis is occurring due to the various 8 elements जो होते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं. इसमें हम मोलिब्डेनम, अभी मैं लिख देती हूँ फिर सब, आयरन की भी होती है शायद, 1 2 3 4 5 6, Zn भी हो गया, मोमन्स, सल्फर भी हो गया, और कौन सा था? There was 2 more element that can lead to the iron. I have written iron. I have written Zn is also there and potassium is also there. Potassium तो मैंने लिख लिया, Zn और MO, Mn, iron, potassium, nitrogen. One was left, nitrogen. तो इनको तो लर्न करना ऐसे है जैसे कि हमें तो ये है कि what we have to keep them in, retain them all the time in mind. There is no another method. बारी बारी से इनको हमने लर्न नहीं करना है. तो वन इजी मेथड मैं आपको बता सकती हूँ कि मो, आपको इसको हिंदी में लर्न कर लो. मो, Mn को जैसे मोलिब्डेनम, Mn को मन. बहुत सारे न्यूमोनिक्स हैं, लेकिन आप कैसे भी कर सकते हो. मैं तो ये माइंड में डिटेन किया कि हिंदी में अगर हम इसको लर्न करें, एस को सा, Zn, 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 आयरन, Fe, तो फे, Fe, और पोटाशियम का के, इस तरह से लिख सकते हैं हम, पोटाशियम के, मो, मेन, सा, जन, फे, फी लिख लो, Fe, फी, के, एंड देन नाइट्रोजन, ना को ना से, नाइट्रोजन. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7. 1 again is left, which is there. We have written all, I think. Molybdenum we have written, manganese we have written, sulfur we have written, Zn we have written, iron, potassium, nitrogen, and 1 2 3 4 5 6 7 and 8. इसमें कितने नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6. So it completes 8. Mg, मग लिख लो इसको. तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है ना. और तो कोई रास्ता नहीं है इसको इस तरह से, ओनली व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड. और इसीलिए तो मैंने आपको साथ साथ पहले भी बताए थे कि ताकि वो हमारे माइंड में बड़े अच्छे से रिटेन्ड रह जाए. तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्लोरोसिस ऑकर ड्यू टू द लॉस ऑफ दिस ऑल डेफिशिएंसी ऑफ दीज मिनरल्स. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट. व्हाट इज नेक्रोसिस? नेक्रोसिस हैपेंस इन डेथ ऑफ ए टिश्यू. इधर लिख लेते हैं, नेक्रोसिस इज डेथ ऑफ ए टिश्यू ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ए सिम्टम्स. कुछ सबसे पहले तो स्पॉट्स से नजर आते हैं, ब्राउन से या ग्रे से, ब्लैक स्पॉट्स स्पेसिफिकली ऑन लीफ पे नजर आते हैं, फिर स्टेम पे भी नजर आते हैं. और उसके बाद क्या हो जाता है, वो स्पॉट्स जहाँ नजर आएंगे ना ब्लैक से कलर के, तो दैट पार्ट बिकम्स डिसऑर्गेनाइज, खत्म हो जाता है. तो वी कैन से कि पेरेन्काइमा सेल्स आर डाइड. जितनी भी वहाँ की पेरेन्काइमा सेल्स है ना, तो वो
खत्म हो जाती हैं, दे आर डिसऑर्गेनाइज फर्स्ट ऑफ ऑल एंड दे बिकम डेड एंड दे गिव द ब्राउनी सी अपीयरेंस एंड देन डेड। क्लियर? फर्स्ट अपीयरेंस होती है डेथ ऑफ ए टिश्यू, नेक्रोसिस में ब्राउन स्पॉट्स डेवलप होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राउन, ग्रे और ब्राउन स्पॉट्स ऑन लीफ। तो अब इसमें नेक्रोसिस इज ड्यू टू कॉपर, कैल्शियम, कॉपर, पोटाशियम एंड Mg। ये तो बहुत इजी है लर्न करना, का कू के मग। क्लियर? इस तरह से आप कर सकते हो, तो यू कैन लर्न लाइक दिस, का कू के मग। अब ये मत सोच लेना कि मैं आपको वो क्या कहते हैं हिंदी में, लोअर क्लासेस में जो पढ़ते हैं, व्हाट वी कैन से का खा गा, वो नहीं मैं सिखा रही हूँ आपको। यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ कैल्शियम, कॉपर, पोटाशियम, मैग्नीशियम, तो उसको आपने देखना है। ठीक है? आई एम नॉट टेलिंग यू रिगार्डिंग कैसे उनकी मात्राएं लर्न करते हैं, वो तो अब हम सब भूल चुके हैं, मेरे को भी नहीं आती वो तो, लेकिन थोड़ा सा हम ऐसे इसमें हम रिमेंबर कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। इनहिबिशन, सेल डिवीजन ना होना, ठीक है? इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, जिसके कारण प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है। ठीक है? और इसमें हम ले सकते हैं MOSKN, देयर आर 4 एलिमेंट, मोस्कन। इजी है, निमोनिक्स को याद करने के बजाय ना आप ये वर्ड लर्न कर लो, मोस्कन। दो इतने बड़े बड़े वर्ड्स हमें सेंटेंस लर्न करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। बिसाइड दैट इट इज, आई थिंक इट इज एन इजी वे, मोस्कन। और नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा डिले इन फ्लावरिंग। डिले इन फ्लावरिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मोशन, जिसमें पोटाशियम को हमने निकाल दिया, फ्लावरिंग में डिले हो जाना। ये 4 तो मेन सिम्टम्स बुक में दिए हुए हैं जो NCERT में, जो हमने माइंड में रखने हैं। MOSN, मोशन, तो वर्ड बना लो मोशन, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू कैरी ऑल दिस थिंग्स। क्लियर? सो दिस इज रिगार्डिंग वेरियस डेफिशिएंसी सिम्टम्स दैट आर इन आवर बुक। ठीक है? और मोर ओवर सम ऑफ मोर सिम्टम्स आर देयर, बट आई विल नॉट टेल यू बियॉन्ड NCERT, राइट?